Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I am Ashwani Garg. I will discuss you the topic of class 12. Our subject is business studies and today class topic is management and introduction. Management means to manage anything. In life, if we manage anything, all the things comes under management. Anything means business and non-business. Any activity which are related to business comes under management, or any activity which are related to non-business also comes under management. In business, we are conducting various type of activities with the motive of profit earn. Means in every type of the business, in any business, we conduct any type of the activity, exchange of goods and service for earning profit comes under business. Non-business like as hospital, cooperative societies, other form, the main motive is not to earn money but conducting activity for the social welfare. Means management is applicable in business as well as non-business. So to manage anything is known as the management. Now I discuss with you the meaning of the management. Management refers to conducting a set of function like as planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an effective and efficient manner. मैनेजमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस. एक पर्टिकुलर टाइप से आपकी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपके वर्क किए जाएंगे. आपकी जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling, all are the steps for the management process. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Means management is the process in which a particular steps are conducted. On the first step, planning, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing and fifth one is controlling. So management refer to the process of conducting a set of functions. These are also known as the step of the process of management and also the function of management to get the work done in an effective and efficient manner. मैनेजमेंट आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेरियस टाइप के फंक्शन आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है. टू गेट द वर्क डन, हमारा जो भी वर्क है उसको हमें कंप्लीट करना है इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करना, उसको क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट. नाउ इन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देयर आर टू टर्म्स, effective and efficient. These are the two terms related to the management definition. Effectiveness refers to complete the task on time. Any task in business and non-business which are completed on time is known as
effective, efficient to complete the task in cost effective manner. मीन्स जो हमारी एफिशिएंट बनेगी उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा वर्क है वो वर्क कंप्लीट करना है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. मीन्स दैट इन इफेक्टिव वी कंसिडर द टाइम. इफेक्टिव में हम टाइम को कंसिडर करते हैं, एफिशिएंट में हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. मीन्स बोथ आर द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, effective as well as efficient. Now what is the effective? Effectiveness, it refers to completing the task on time, no matter whatever the cost. मीन्स हमें अपनी टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना है चाहे कॉस्ट हमारी कितनी भी आ जाए. हमारा कोई भी वर्क है, अगर हमने टाइम डिसाइड किया है 1 month, 15 days, 2 month, एनीवन, कोई भी टाइम हमने डिसाइड किया है तो हमारा वर्क जो है इस टाइम पर कंप्लीट हो जाए तो वो हमारा इफेक्टिवनेस होगा. चाहे हमारी कॉस्ट जो है वो डबल ही क्यों ना आ जाए, उससे कोई मैटर नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो मीन्स इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्शन मैनेजर have a task to produce 10,000 units in 1 month at the cost rupees 150 rupees per unit. हमें जो है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क करना है तो प्रोडक्शन मैनेजर को एक टास्क मिली है कि उसे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 1 मंथ के अंदर. उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 150 रुपीज पर यूनिट आनी चाहिए. तो इस केस में आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया इन 1 मंथ. टाइम था 1 मंथ, बट जो हमारी कॉस्ट है वो आ रही है 170 रुपीज पर यूनिट. तो इस केस में हमें टाइम को कंसीडर करना था. टाइम को कंसीडर करने से हमारा वर्क कंप्लीट हो गया. हमने टाइम सेट किया था 1 मंथ के अंदर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है. तो प्रोडक्शन मैनेजर ने 1 मंथ में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है. उसकी कॉस्ट चाहे 150 से 170 आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द सेकेंड टर्म इज एफिशिएंट. Efficient refers to completing the task in cost effective manner. इफेक्टिव में क्या था, कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करना था. एफिशिएंट में क्या है, टास्क को कंप्लीट करेंगे इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. मीन्स एनी वर्क which can be produced at rupees 150 per unit, then our work will be completed on that amount or less than that amount. Then this work is known as efficient. Means in efficient we consider the cost benefit analysis. जो भी हमारा cost benefit analysis है उसको कंसिडर किया जाएगा. हमारा वर्क टाइम चाहे कितना भी ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा वर्क जो है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, जो कॉस्ट डिसाइड की गई है उस कॉस्ट पे. फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्शन मैनेजर
have a task to produce 10,000 units in 1 month at the cost rupees 150 per unit. Then a particular manager performed that manager produced 10,000 units 1.5 month, but the amount of producing per unit is 140 rupees per unit. Then this manager is known as efficient because the cost will be 150 per unit, but at that time the cost is 140. हमारी cost 150 रुपीज आनी चाहिए थी, but cost जो है वो हमारी 140 आई, तो आपका मैनेजर क्या होगा? एफिशिएंट होगा. I think it's clear to you. More examples are provided to you to understand the both concept, efficient as well as the effectiveness. Example first, if a particular person is A has given task to arrange $100 means उसे $100 कलेक्ट करने हैं, या ये कह सकते हो आप a particular person get a task to arrange 1 lakh rupees in 15 days. उसे 1 लाख रुपीज अरेंज करने हैं 15 डेज में. तो आपके अलग अलग मैनेजर है, मैनेजर X, मैनेजर Y और मैनेजर Z. X मैनेजर ने 1 लाख रुपीज का अरेंजमेंट कर लिया, Y ने भी 1 लाख का अरेंजमेंट कर लिया, Z ने भी 1 लाख रुपीज का अरेंजमेंट कर लिया. इसने आपका जो अरेंजमेंट किया है वो 15 डेज में किया है, इसने उसका अरेंजमेंट 25 डेज में किया है, और इसने अरेंजमेंट 15 डेज में किया है. अब इस केस में जो इसने 1 लाख रुपीज का अरेंजमेंट किया था उसने 10% की इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है 1 लाख रुपीज. मार्केट रेट क्या थी? मार्केट रेट है 8%. मीन्स इन फर्स्ट केस X अरेंज 1 लाख रुपीज इन 15 डेज. 1 लाख रुपीज ही अरेंज करने हैं, 15 डेज में ही अरेंज करने हैं. X ने अरेंज कर लिए, 10% की रेट से इंटरेस्ट से लोन लिया है, मार्केट रेट है 8%. इन द सिमिलर Y अरेंज 1 लाख रुपीज इन 25 डेज, इंटरेस्ट रेट 7% की रेट से उसने इंटरेस्ट की रेट से रुपीज को अरेंज किया है, मार्केट रेट कितनी है? 8%. इन द सेम केस Z अरेंज रुपीज 1 लाख in 15 days, 7% इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट है 8%. Now, which one is efficient, which one is effective? In efficient, we consider the time no matter whatever the cost. Means X ने 1 लाख रुपीज का अरेंजमेंट किया, कितने टाइम में करना था? 15 डेज में. इसने 15 डेज में ही अरेंज कर दिया. हाँ, मार्केट रेट 8% थी, बट उसने 10% की रेट से लिया तो कॉस्ट ज्यादा आ गई. तो इन एफिशिएंट इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट. तो X हमारे लिए क्या होगा? इफेक्टिव होगा, क्योंकि X ने टाइम पर काम पूरा कर दिया. Y हमारे लिए क्या होगा? एफिशिएंट होगा, क्योंकि इसने 15 डेज की जगह 25 डेज में मनी अरेंज की है. तो टाइम तो इसने कंसीडर किया नहीं, हाँ कॉस्ट कंसीडर की है. मार्केट रेट 8% थी, लेकिन इसने मार्केट रेट से कम रेट पर आपका लोन का अरेंजमेंट कर दिया 7%. तो ये क्या होगा? एफिशिएंट. Z है, उसने 1 लाख रुपीज का अरेंज 15 डेज में किया, मींस टाइम पर भी वर्क कर दिया और मार्केट रेट से कम पे किया. तो Z जो है वो बोथ है, वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, क्योंकि उसने टाइम पर भी काम पूरा किया और कॉस्ट भी कमाई. तो दीज आर द 3 पर्सन. X is effective, Y is efficient, Z is both effective as well as efficient, because he arranged 1 lakh rupees in 15 days as well as the less than the market interest rate. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.